Hi, guys. A very good evening to all of you. Welcome to Vedantu Commerce, everyone. Hello. Never give up because great things take time. Such a beautiful quote to start our evening with, guys. So, class 11th, are we ready for having some fun? Yes. So if you are new to the channel, what do? You subscribe to the channel. And कैसे करते हैं attendance मेरी क्लास में like का बटन दबा के. So please like the video, share it with all your friends, call all your friends here. This is our telegram group, guys. यहाँ पे आपको मिलते हैं notes from the teachers which are teaching you सारे के सारे notes and timetable of all the teachers, that which teacher is going to come at what time, what are they going to teach for the day. All this you are going to get in this channel only. Link is there in the description box. Please go ahead and join it. This is our 2021 Pro subscription, guys, that I am telling you about. So when you take the 2021 Pro subscription Vedantu Commerce का, your all your needs like crash course अगर अभी करना है या micro courses you need to do, all those things are covered. And as आपका like 11th के एग्जाम्स ख़त्म हो गए एंड 12th की प्रेपरेशन के लिए यू वांट टू सब्सक्राइब, व्हाट इज़ बेटर दैन वेदांतु कॉमर्स, गाइस? So the pro subscription will give you micro courses access and crash courses as well. We have a pool of 20 plus teachers at Vedantu Pro, so go ahead and learn from their experience as well. यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा मिलता है मैम? अब बोलोगे मैम यूट्यूब में तो आके पढ़ाई देते हो. यहाँ पे बेटा मिलते हैं आपको टेस्ट असाइनमेंट्स, राइट? यू नो द वैल्यू ऑफ टेस्ट असाइनमेंट्स, मॉक टेस्ट पेपर्स एंड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स कैसे लिखने हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. वी प्रिपेयर यू ओवरऑल फॉर 4 सब्जेक्ट्स दैट वी हैव फॉर यू. इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज एंड मैथमेटिक्स, राइट? यू गेट 5000 plus hours of live online teaching as well. So this is your pro subscription package. 2799 is for 4 subjects 1 month and 7999 4 subjects again for 3 months. This is your after discount price, guys. How will you get the discount? When you apply the coupon code NR Pro. NR Pro जैसे ही आप कूपन डालोगे आपको मिल जाएगा डिस्काउंट. लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो माय वीडियो. एक बार वेदांतु की साइट पे जाना, कॉमर्स वाले कॉलम में क्लिक करना, उसके बाद जस्ट एक्सप्लोर योर ऑप्शंस दैट व्हाट मतलब क्या क्लासेस चल रही. एक बार जाके जस्ट एनालाइज दैट. ओके, सो गाइज हमारा फाइनली द मच अवेटेड चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज फाइनली हियर. इसके बहुत सारे सितारे लगा देते हैं, है ना? इतना वेट करते मैम कब पढ़ाएंगे कब पढ़ाएंगे कब पढ़ाएंगे. आ गया फाइनली वो चैप्टर. सो कीप ऑल योर डाउट्स हैंडी. आज सारे के सारे हम क्लियर करने वाले हैं आज, और एक और लेसन जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब वी विल क्लियर ऑल दिस. ठीक है, आज थ्योरी बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आर मीन का प्रैक्टिकल ऑल्सो, एवरेज का प्रैक्टिकल ऑल्सो हियर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर. What is the learning objective? हम आज क्या क्या करने वाले? I'm going to introduce to the topic that why do you require measures of central tendency? Then what are the requisites for it? Types of average. Meaning of arithmetic mean. उसकी kinds, merits, demerits we are going to do. And then we are going to see some of the calculations of arithmetic mean. ठीक है, 3 methods होती है, direct method, shortcut method and step deviation method. We are going to do all that. अच्छा, इससे पहले एक बात मुझे क्लियर करके बताओ. हाउ मेनी सीरीज आर देयर? सीरीज कितनी होती है? कितनी हम पढ़ के आए हैं? तब से पढ़ते आ रहे हैं ना, इतनी सारी सीरीज हो रही हैं. कौन सी है? इंडिविजुअल है, ठीक है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है. These 3 are the series that you are going to get. आपको इन तीनों में से कोई भी सीरीज मिल जाए. इंडिविजुअल मीन्स जस्ट नंबर्स लिखे हुए हैं, राइट? 5 है, 9 है. डिस्क्रीट, यू हैव x with frequency. f is also given there. Continuous looks like this. ठीक है. Now
For all these series, if I ask you, you need to calculate arithmetic mean. You should be able to do that. That is our main aim. ठीक है? So what are the methods in these three series? पूरे के पूरे हम डायरेक्ट शॉर्टकट एंड स्टेप डिविएशन कर सकते हैं. डिस्क्रीट में भी तीनों, कंटिन्यूस में भी तीनों. सो अर्थमेटिक मीन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ सीरीज: इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, एंड इन दैट ऑल्सो 3 मेथड्स. ठीक है? वंस यू लर्न हाउ टू जस्ट कैलकुलेट दीज मेथड्स, ये तो फिर आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो. कोई भी सीरीज हो, देयर इज अ स्पेसिफिक ट्रिक, वो हम देखने वाले हैं कि क्या होता है. ठीक है? डिस्क्रीट में जब आएंगे तब देखेंगे. कंटिन्यूस में क्या करना होता है, दैट ऑल्सो वी विल वॉच. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. सो बिफोर वी स्टार्ट कि ये होता क्या है, व्हाट इज दिस. तो सेंट्रल टेंडेंसी refers to central values. Just a moment, my pen is not seen. So central tendency refers to central values or a representative value of statistical series. Now हम क्या क्या पढ़ाई करके आए हैं मैम? वी हैव डन कलेक्शन ऑफ डेटा, वी हैव डन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. ठीक है? उसको फ्रीक्वेंसी डायग्राम में भी बना लिया, टैबुलेट भी कर लिया. सो वी हैव रिप्रेजेंटेड ऑल्सो डेटा इन अ फेयर मैनर, अट्रैक्टिव बना दिया, सुंदर सुंदर सा बना दिया. ठीक है? ऑल दैट वी हैव डन, बट दैट इज अगेन ऑल द डेटा यू आर गेटिंग ऑन सम ग्राफ, राइट? देयर इज समथिंग लैकिंग कि एक वर्ड की आंसर बता दो, है ना? होता है ना कि मैम एक वर्ड में बता दो, कैसे समझना है? दैट वन वर्ड थिंग इज योर सेंट्रल टेंडेंसी. मीन्स पूरा एंटायर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव वन नंबर दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. ठीक है? कंपैरिजन इजी हो जाएगा ना, जब बहुत सारे चीज़ें आपको कंपेयर करनी होती है. हर चीज़ का वन मेन जो लीडर है, लीडर निकाल के रख दिया हमने, सबके लीडर्स कंपेयर कर दिए. ठीक है? इजी पड़ जाएगी थिंग्स. सो दैट इज देयर वी आर गोइंग टू डू. वी आर गोइंग टू मेक सम सिंगल मेजरमेंट्स, वेदर इट बी मीन, मोड और मीडियन. तीनों चीजों में क्या है, सिंगल नंबर्स है. वी आर गोइंग टू मेक सम सिंगल वैल्यूज एंड वी आर गोइंग टू कंपेयर ऑल दैट. वो सिंगल वैल्यूज क्या होते हैं? दे आर टेलिंग यू द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर एंटायर डेटा. ठीक है? मतलब वो सबको रिप्रेजेंट कर सकता है, लीडर. ठीक है? सो दैट इज गोइंग टू बी देयर. वो बहुत ही क्लियर पिक्चर दे देता है आपको दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ये पूरा डेटा किस टाइप का है, दैट represents that. Okay, so such measures are called as your measures of central tendency. Central मतलब बीच बीच का. So now what are the tendencies जो हमें पढ़ने वाले हैं? First is your arithmetic mean. Second, what we are going to study today, मीडियन हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट टुडे आज इसका समझ में आ जाएगा कि होता क्या है. देन मोड इज देयर. ठीक है? दीज आर द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. वेरी कॉमन, वेरी एवरेज वाली जो चीज़ें होती है, दिस इज नोन एज एवरेज और योर मेजर ऑफ लोकेशन ऑल्सो. ठीक है? क्लियर? लेट्स स्टार्ट देन. ये हम क्यों करते हैं? क्यों, क्या ऑब्जेक्टिव है? टू मेक डेटा सिंपल, टू represent a huge amount of data, then to help in decision making, that we have various datas with us, various groups, and we are comparing. So it is making what? Decision making easy हो रहा है हमारा. Then to know about the whole universe. What is a universe, ma'am? Universe, इतना सारा यूनिवर्स के बारे में, ये एक कोई नंबर बता दो जो ये यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता. क्लियर? ठीक है? ना बेस ऑफ कंप्यूटिंग फॉर अदर मेजर्स ऑल्सो, अदर कैलकुलेशंस ऑल्सो वी डू ना. रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, इतनी जल्दी थोड़ी पीछा छूटने वाला है. सो क्या होने वाला है, उन सब का ये बेस है दैट वी हैव टू कैलकुलेट वन थिंग जो बाकी चीज़ों में हमें टूल्स हैं या असिस्ट करें. राइट? सो लेट्स see what are the requisites of measures of central tendency. So
our central tendency must have the following characteristics. Clear? What are those? पहले, rigidly defined. What do you mean by rigidly defined? Rigidly defined, when I tell you, it means your average should be clear. ठीक है, क्लियर होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, नो कंफ्यूजन शुड बी देयर. Next, based on all the observations. So when you are making a calculation, it should be calculated on all the observations. मतलब जितने भी बच्चे हैं क्लास 11th में, I have to make note of everyone. ऐसे नहीं कि I cannot miss someone, right? If I am missing someone, how is my answer that I am calculating based on all the observations? So it has to take in account each and every single item of the series. Do not miss anything. Third is your least affected by fluctuations of sampling. ठीक है, इसका मतलब क्या है? An average should possess what? Sampling stability. ज़्यादा मतलब अगर सैम्पल मैं चूज कर रही हूँ तो सैम्पल शुड बी स्टेबल इनफ. ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए उसमें. अगर 2 और मोर रैंडम चीज़ें हम ले लेते हैं तो दे शुड बी इक्वल. Capable of further algebraic treatment. What are further algebraic treatment? Your regression, your correlation, or any other statistical tool that you need to complete. ये सब वो represent करना चाहिए उसको. ठीक है, you should be able to calculate all of these with the help of your measures of central tendency. They should be readily available to you. Easy to understand and calculate as well. So what do you mean by easy to understand? मतलब कि calculation का methods, there are various methods, right? So methods should be easy. ज़्यादा complications नहीं होने चाहिए, problem नहीं होने चाहिए, but at the same time it should give you the correct answer also. Easy method है, गलत answer दे रहा है तो wrong है. So easy, understand भी easy होना चाहिए, calculation should be proper, right? Next, not affected much by extreme values. If we have some very extreme values, very small अगर कुछ है हमारी data में या very large we have, so it should not be affected by that. That is a requisite. That is required by a measure of central tendency. Okay. Now let's come to types of averages that we have. पहला है, सिर्फ मीन हमारा एवरेज नहीं होता गाइस. ठीक है, फर्स्ट टाइप इज मैथमेटिकल एवरेज. इसमें आता है आपका अरिथमेटिक मीन. इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? एक्स बार, राइट. सेकेंड कम्स योर ज्योमेट्रिक मीन. यू राइट इट एज जी. थर्ड इज योर हार्मोनिक मीन, एच. ये मैथमेटिकल एवरेज हुए. Then comes positional average, that on which position these are. अगर बीच में है तो क्या बोलेंगे उसको? मीडियन. इसको m लिख सकते हैं या फिर we can write it as me also. Then comes your mode. Mode तो अपना z है, z मोड में घूम रहा होता है. Now commercial average. Commercial averages are moving average, progressive average and composite average. इतना सब देखकर डरो नहीं. What is in your syllabus guys? आपके syllabus में है arithmetic mean, median and mode. ठीक है, थोड़ा थोड़ा positional का भी we can have a gist कि क्या थोड़ा बहुत क्या करना है, but ज़्यादा कुछ नहीं. quartiles आ जाते हैं, वो सब चीज़ें आप कर सकते हो, but not all of these. ठीक है, ये सब are not in your syllabus. I have just told you so that you should know. अगर कहीं पे नेम आया तो मतलब ये क्या था, कहाँ था, should not be there, right? So let's see. Let's start first with your arithmetic mean. ठीक है, arithmetic mean is the number which is obtained by adding the values of all the items of a series and by dividing the total by the number of items. Let's go through this line once again. हमें डेफिनेशन से क्या हो जाएगा? डेफिनेशन लर्न करने की नहीं है, फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सो वी शुड बी एबल टू राइट द डेफिनेशन वेरी इजीली हियर.
right? Arithmetic mean is the number which is obtained by adding all the values of the item of a series and by dividing it by total number of items. ठीक है? Look here, it can be expressed like this. Arithmetic mean total of all the values a1 a2 से लेके an divided by total number of values. कितने हैं 1 2 3 4 से n तक. So here comes n. So this is summation guys. ठीक है, summation बुलाते हैं इसको. Summation of from 1 to n. ठीक है, data from 1, this is 1 to n. n is here your last. So it will be ai, जितना भी आपका डेटा आया उसका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, कितने नंबर हैं उस सीरीज में. ठीक है. So your x bar is your the mean, a1 first value of the series, a2 second value, and likewise an is what? An is your last value of the series, and n is the number of values. कितने values हैं? Clear? Very easy, easy peasy. Okay. So ये बहुत ही easy पढ़ने वाला है. आपको थोड़ा दिमाग सेंटर में रख के हमें पढ़ाई करनी है. डोंट लेट योर ब्रेन इधर उधर डोलना चालू मत कर देना. आपको क्या करना है? यू शुड बी लाइक फोकस्ड व्हेन यू आर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल्स, जस्ट लाइक मैथ्स आप करते हो. थ्योरी में तो थोड़ा बहुत चलता है ना कि चलो यहाँ लिखा, ध्यान वहाँ चला गया, यहाँ तो ध्यान यहाँ वहाँ गया तो दुर्घटना घटी, नज़र हटी दुर्घटना घटी हो जाने वाला है. यस. Now, there are two types. First is your simple arithmetic mean. This we are going to do right now. And then weighted arithmetic mean is also there. Let's look at some of the merits. ऐसे generally ये पूछते नहीं हैं. But you should know that why do we calculate arithmetic mean, merits and demerits. Right? आपको अगर मतलब a good question will be giving you a practical problem of it. Theory तो आपको पता ही होनी चाहिए थोड़ी बहुत. सो मेरिट्स, अर्थमेटिक मीन सिंपल होता है, सर्टेनिटी होती है उसमें, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स. आपने देखा ना a1 a2, क्या कहाँ तक जाते हो? an, बेस्ड ऑन ऑल द नंबर्स. देन फर्दर algebraic ट्रीटमेंट कैन बी डन टू इट. इट हैज़ अ सर्टन स्टेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल स्टेबिलिटी होती है उसमें. And accuracy tests are there to calculate it, to check it. Then what are the demerits? Effect of extreme values. If we take बहुत सारे extreme values, problem आ जाएगी. Mean थोड़ा गड़बड़ हो सकता है. Mean value may not figure in the series at all. ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है कि some values are 1 5 7 9 10 and something till n numbers, and आपका मीन वैल्यू आया है 8. ठीक है, इफ 8 इज योर मीन वैल्यू, 8 आपको कहीं दिख रहा है? नो, सीरीज में तो है नहीं, बट स्टिल इट कैन बी अ मीन. ओके, सो मीन वैल्यू मे नॉट फिगर इन द सीरीज एट ऑल. More stress on items of higher value is there. Unsuitable in certain situations. It can give misleading conclusions if we are not मतलब अगर properly calculate किया है तो mislead नहीं करेगा, but अगर extreme values बहुत सारे ले लिए हमने, it can mislead to any conclusion. Now, there are 3 methods by which we calculate your arithmetic mean. What are those 3 methods, guys? Direct method, shortcut method and step deviation method. डायरेक्ट मेथड आपको लगता होगा कि बहुत लंबा मेथड है मैम, शॉर्टकट वाले से स्टार्ट करते हैं. बेटा शॉर्टकट उससे भी लंबी कैलकुलेशन है.
राइट. बट इसमें क्या होता है, कैलकुलेटर का यूज़ थोड़ा कम हो जाता है. इसमें अगर वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं तो कैलकुलेशंस में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, डिवाइड करना पड़ता है. एंड स्टेप डिविएशन इज वन स्टेप फर्दर इन योर कैलकुलेशन. कोई ईजी नहीं है, एक से बढ़कर एक है तीनों के तीनों, बट वेरी वेरी ईजी ऑल्सो. सो कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन फॉर हाउ मेनी सीरीज आर वी गोइंग टू डू. कितने सीरीज हैं हमारे पास? टेल मी टेल मी टेल मी. वी आर गोइंग टू डू इट. पहले इंडिविजुअल में तो बहुत ईजी है. ठीक है, इंडिविजुअल में कैसे निकालोगे? यू हैव सर्टन नंबर्स. लेट मी जस्ट फाइंड वन एग्जाम्पल, वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ. ओके, नाउ इंडिविजुअल में यू हैव व्हाट? स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई. ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं. इसके आपके मार्क्स लिख दिए हैं हमने. 10 20 30 30 10. राइट. ना अब क्या निकालेंगे? व्हाट इज योर मीन? लाइक मीन क्या होता है? दिस इज समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज A1 से लेकर A5 तक. सो 10 प्लस 20 गिव यू 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 30 90 एंड 10 100. समेशन आया. डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? n. 1 2 3 4 5. ठीक है, आ गया आंसर. दिस इज योर मीन. इंडिविजुअल सीरीज. ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज एंड डायरेक्ट मेथड. करेक्ट. नाउ विच आर द टू टाइप्स ऑफ सीरीज जिसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है हमको? ज्यादा ऐसे नहीं होने वाला है, बट स्टिल second types of series will come. Discrete series. Again 3 calculations we are going to do. Third comes your continuous. ठीक है, ओके. तो ये तीनों सीरीज, 3 methods we are going to be focusing on. Don't get confused. Let's start. So here comes your first question. Compute the mean marks from the data given below by direct method, shortcut method and step deviation method. We are going to understand basics of all these methods. उसके बाद सीरीज कोई भी आए, सीरीज को हम देख लेंगे. मेथड्स पहले समझते हैं. ठीक है ना. ये कौन सी टाइप की सीरीज है? मार्क्स दिए हुए हैं, मतलब कि x है ये, एंड स्टूडेंट्स क्या हो गए? f. ये तो डिस्क्रीट सीरीज हो गई. ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज में लेट अस स्टार्ट. ओके, वी विल गो वन स्टेप एट अ टाइम. नाउ डायरेक्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं. आपको क्या दिया हुआ है? व्हाट इज गिवन इन योर क्वेश्चन? मार्क्स गिवन x. ठीक है, बाकी चीजों पे फोकस नहीं करना. वॉट एवर आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज लाइन्स ओनली. तो मार्क्स हो गया हमारा x एंड f इज गिवन टू यू. स्टूडेंट इज गिवन टू यू. ठीक है, f. नाउ डायरेक्ट मेथड क्या फॉर्मूला बताता है? हियर, कैलकुलेटिंग मीन मार्क्स यूजिंग डायरेक्ट मेथड. दिस इज योर फॉर्मूला. समेशन fx divided by fx. ठीक है, summation of your fx divided by fx. Let's see. Okay, now summation fi है. Wait, ये summation f आएगा guys. So sorry. Here, summation fx divided by summation f. ठीक है, this is your formula. Let's see. तो हमें क्या चाहिए? We are not bothered about these columns right now. ये दूसरे methods में आएंगे. I will multiply my first column with my second column and I am going to get fx. fx. 4 2s are 20. 6 into 15, 90.
एंड सो ऑन, राइट. इसका मैंने क्या किया, टोटल किया. मैंने अपना n निकाला. n इज व्हाट, योर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू fx, समेशन fx. इतने ही ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके n टोटल. आपने क्या किया, समेशन fx निकाला, समेशन f किया. समेशन f कम्स टू 60, इसका टोटल है. ठीक है, इन सब लाइंस का टोटल है ये. नाउ fx मैंने मल्टीप्लाई किया था. आई विल डू अ टोटल ऑफ दैट कॉलम एज वेल. मेरे पास क्या आ गए, दो फिगर्स, समेशन fx एंड समेशन f. बाय डायरेक्ट मेथड आई हैव टू कैलकुलेट मीन. डायरेक्ट मेथड में आता है मेरा समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f. समेशन f को मैं n भी लिख सकती हूँ. क्लियर? ओके. सो क्या आने वाला है हमारा आंसर, यहाँ नीचे लिखती हूँ, वहाँ पे डायरेक्ट वाला करेंगे, स्टेप वाला करेंगे. 2100 डिवाइडेड बाय 60. ठीक है. सो आवर आंसर इज हियर 35 मार्क्स. When I divide 2100 divided by 60 comes to 35 marks. This is which method? This is your direct method. ठीक है. Now अब हम आते हैं किस मेथड पे, शॉर्टकट मेथड पे. शॉर्टकट, चलो ओके. उसके लिए भी fx तो आपको निकालना पड़ेगा. ठीक है. नाउ यू आर गोइंग टू अज्यूम अ मीन. अभी मीन क्या आया है, रियल में मीन क्या आया है बताओ. व्हाट इज द मीन, 35 मार्क्स इज द रियल मीन. अभी सपोज आपको पता नहीं है कि 35 मीन आने वाला है. यू आर जस्ट लुकिंग इन टू दिस एक्स का कॉलम एंड यू आर गोइंग टू अज्यूम एनी मीन. कोई भी ले सकते हो. यू कैन टेक 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, एनी. टेक वन अज्यूम मीन. I'm so sorry guys. So what are you going to do? You are going to assume one mean. फिर हम किस कॉलम पे आए हैं, D निकालेंगे. ठीक है. शॉर्टकट मेथड में वी आर गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट, D. तो D क्या होता है, D इज योर x माइनस a. x माइनस a. इसको उल्टा मत कर देना, a माइनस एक्स मत करना. इट इज x माइनस a. सो x इज व्हाट इन फर्स्ट कॉलम 5 माइनस 35 माइनस 30. x 15 माइनस a, 15 माइनस 35 will give you minus 20. Then x is 25 माइनस a. सी माइनस इज ज्यादा तो यहाँ माइनस माइनस साइन आते जा रहे हैं. x 35, a 35, 35 माइनस 35 will give you 0. x 45, a 35, 45 minus 35 will give you 10. x 35, a, x 55, a 35, x minus a 20. 65 minus 35 will give you 30. Clear? Okay. Now what are we going to do? We are going to multiply f with d. पहले हमने क्या मल्टीप्लाई किया था, फर्स्ट टू कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया था, fx आ गया था. ठीक है. नाउ fx नहीं किया मैंने अभी तक. I have multiplied my f with d. ठीक है. एफ डी निकालनी है, एफ डी निकालेंगे. सो F4 D माइनस 30 माइनस 120, F6 D माइनस 20 माइनस 120 एंड सो ऑन. आई हैव टू डू अ समेशन ऑफ एफ डी नाउ. एफ डी कितनी है आपके पास, सबकी टोटल करनी है. 120 प्लस 120 माइनस 120 प्लस 120 माइनस 100 plus 100 minus is giving you 0. This is just a coincidence that this is giving you 0 because we have assumed the same mean जो कि शॉर्टकट मेथड से आया, डायरेक्ट मेथड से आया है. अगर मैं कोई और मीन लेती तो ये 0 नहीं आता. देयर वुड हैव बीन सम डेविएशन.
ठीक है. Okay, now let's look at the formula. Shortcut method. Assume mean plus summation of FD divided by summation of your F. Once again, assume mean लिया है. शॉर्टकट मेथड में क्या किया, assume mean लिया है ना, तो मतलब फॉर्मूला में तो आएगा. assume mean शॉर्टकट में we are always taking one assume mean. A plus summation of FD, यहाँ पे क्या लिया था, summation FX. अब D निकाला है शॉर्टकट के लिए तो कुछ तो करेंगे. Let's multiply F with it. summation FD divided by summation F. ठीक है. assume mean क्या है हमारा 35. summation FD कितना आया था, 0 आया था. we did the totaling. what is summation F, यहाँ पे भी आया था 60. so what is the mean, 35 marks. all the answers from all the methods, your answer is going to be same. methods कोई भी हो, you are going to get the same answer, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, mean निकाल रहे हैं. how will it change with different methods. now let's see your step deviation method also. step deviation में एक step हम further चले जाते हैं. ठीक है. ये now मैंने क्या निकाल लिया था, मैंने यहां तक निकाल लिया था FD तक, राइट. FD को रखे रहो अभी. now what am I going to do, मैं ये जो deviation निकाला है मैंने, I am going to see कि इसका कॉमन फैक्टर कौन सा है. किससे मैं डिवाइड करूंगी इसको तो इजी पड़ेगा मुझे डिवाइड करना. बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसका, आई थिंक 10 सब में जा रहा है. सो आई हैव अज्यूम्ड माई I इक्वल्स टू 10. क्लियर. देन आई एम गोइंग टू मेक D dash. D dash निकालूंगी. what is D dash? D dash is nothing but your D column divided by I. clear. so I मैंने क्या assume किया है 10. minus 30 divided by 10 minus 3 minus 20 divided by 10 minus 2 minus 10 divided by 10 minus 1 0 100 120 120. ठीक है. I'm so sorry, this is some error. wait, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 है हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 and 3. ठीक है. 30 डिवाइडेड बाय क्या, 30 डिवाइडेड बाय 10 I, D डिवाइडेड बाय I. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट FD dash now. okay, FD dash. you are always and always multiplying F को. frequency is multiplied everywhere. F पहले X के साथ मल्टीप्लाई हुआ था डायरेक्ट मेथड में, F देन D के साथ मल्टीप्लाई हुआ था शॉर्टकट मेथड में. नाउ F D डैश के साथ मल्टीप्लाई होगा स्टेप डिविएशन मेथड में. क्लियर. ओके. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई. 4 3s are -3 -12, 6 -2 -12 again. So and so on. We got it. अब I am going to make a total of this also. Summation FD dash is also coming to 0, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या हो रहा है 0. एंड हमने अज्यूम मीन ही जो हमारा उससे आया है डायरेक्ट मेथड से वही लिया है, तो यहाँ पे टोटल 0 ही आने वाला है. क्लियर. ठीक है. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला. फॉर्मूला इज नथिंग ग्रेट बट जो हमने शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला किया था. शॉर्टकट में और इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ ये I है ना, दिस इज द ओनली थिंग दैट इज डिफरिंग. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने डिवाइडेड बाय I किया था, सोल्यूशन में इनटू I कर दे. लेट्स सी. या सो सेम फॉर्मूला शॉर्टकट वाला उठाओ, A प्लस समेशन FD डैश, डैश कैलकुलेट किया ना तो डैश डिवाइडेड बाय F इनटू I. आपने वहां पे डिवाइडेड बाय 10 किए थे ना सारे वैल्यूज,
तो जब आपको पूरी वो कैलकुलेशन ईजी करने के लिए किया था आपने, डिवाइडेड बाय 10 दैट इज आई. तो यहाँ पे जब आंसर रियल वाला निकाला है, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई टू गेट द आंसर एज वेल. सो यू आर मल्टीप्लाइंग विद आई हियर. ओके, सो दिस इज सेम कैलकुलेशन करते 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 35 मार्क्स. क्लियर? हैव अ लुक एट ऑल द फॉर्मूलाज. मैं एक बार फॉर्मूला आपको लिख कर बताती हूँ अच्छे से. डायरेक्ट मेथड बोलो. फर्स्ट इज डायरेक्ट. डायरेक्ट में वी आर गोइंग टू गेट summation f(x) divided by summation f. ठीक है. सेकेंड, शॉर्टकट. what are you going to do here? We are taking one assumed mean. okay. फिर एफ डी निकाला था हमने, x की जगह क्या आ गया? d आ गया. summation एफ डी डिवाइडेड बाय summation f. ठीक है, दैट इज ऑल. नाउ थर्ड इज योर स्टेप डिविएशन, वन स्टेप फर्दर. स्टेप deviation method. Let's see. Same formula. A plus summation f d क्या होएगा? Dash, because you are taking d dash divided by I करके. Summation f और क्या करोगे? Into I. Clear? Okay. So direct हो गया, shortcut हो गया, step deviation हो गया. Most of the things will remain same. अभी continuous series हो गया, तो continuous series में f क्या हो जाएगा? इफ आई एम टेलिंग यू 0 to 10 है मेरी सीरीज. ओके, इसमें कैसे निकालोगे एफ? मिड पॉइंट. मिड पॉइंट निकालना आता है, सिखाया था मैंने. अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. 0 + 10 डिवाइड बाय 2 5. तो जितने भी मिड पॉइंट्स आएंगे दैट विल बी नथिंग बट योर एफ. ठीक है, उसको m लिख देंगे, बट रहेंगे क्या वो कैलकुलेशन में? यूजुअली समझने के लिए इट विल बी f. जस्ट अज्यूम दिस सेम थिंग्स इन f. क्लियर? ठीक है. ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में इफ आई मेक ये वाला फॉर्मूला. अगर आपको क्या करना है, आपको ये तीनों सीरीज मेथड में बाइफर्केट करके एक चार्ट बनाना है. Okay, let's make it together in the next session. ठीक है, we'll make it together. All the formulas. Clear? ठीक है. So, before your homework, this is our 2021 Pro subscription, guys, that I am going to tell you about. This takes care of all your micro course and crash course need. And class 11th, अभी तो एग्जाम होने वाले हैं. Class 12th की early preparation start करो with Vedantu Commerce. What better coaching than Vedantu Commerce, right? ओवरऑल आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, मतलब चारों के मार्क्स आते हैं ना क्लास 12th में. तो क्लास 12th इज योर क्लास गाइस. इसको बिल्कुल एस एंड टॉप करना, राइट? सो वी आर देयर फॉर यू. वी हैव अ पूल ऑफ 20+ टीचर्स एट वेदांतु कॉमर्स दैट विल हेल्प यू अचीव व्हाट यू वांट. कंटिन्यूस रिव्यूज होते हैं, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट बताते हैं. यूट्यूब में वी कैन नॉट गिव यू सो मच ऑफ पर्सनलाइज अटेंशन, बट प्रो सब्सक्रिप्शन में टीचर्स टेक केयर ऑफ यू लाइक एनीथिंग. आपको टेस्ट असाइनमेंट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं कि कैसे आंसर करना है, एवरीथिंग यू गेट दैट. दैट इज़ द वन प्लस पॉइंट. एंड वहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स चल रहे होते हैं एट अ सिंगल टाइम. कितने सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं. यहाँ पे तो दिन में 1 लेक्चर होता है आपकी क्लास का, राइट? You get 5,000+ hours of live online teaching as well, guys. So 2,799 for single month, 1 month, 4 subjects, and 7,999 is for 3 months, 4 subjects. What are your 4 subjects? Business studies, accountancy, economics, and maths. This is your coupon code, guys. NR Pro. ठीक है? NR Pro is your coupon code. Link will be there in the description box below my video. इस कूपन कोड को डालोगे आपको क्या मिलेगा? 20% ऑफ मिलने वाला है. सो गो अहेड, वेदांतु की साइट पे जाओ, कॉमर्स के सेक्शन पे जाओ, एक्सप्लोर ऑल योर ऑप्शंस दैट आर देयर.
We are going to be doing numericals, more and more and more numericals of mean, median and mode in the next class, and हम formula का diagram भी बनाएंगे. ठीक है. So this is a very चीनी वीनी सा homework for you. You have to define median. ठीक है. Okay guys. Thank you so much. If you are new to the channel, what do? You subscribe, and before going, hit the like button, share it with all your friends. This is our Telegram group, guys. यहाँ पे आपको मिलते हैं notes of our channel and all the fun quiz is also happening there. और टीचर के टाइम टेबल मिलता है, which teacher is going to come at what time, what are they going to teach for the day. बहुत सारे happening activities होती हैं. So link is there in the description box. Please जल्दी से जाना और join कर लो. Stay tuned guys, and I will see you in the next class. Thank you for watching, and till then, bye bye.